Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak. Today we are moving forward with the UPSC Geoscientist examination 2025 paper. So in this we will discuss this paper with our strategy that we are using and we used for our CAPF and CDS paper. And let me tell you people that the Geoscientist paper is also conducted by the UPSC, and you will find a lot of similarities, and maximum paper is same with the UPSC CSC, with CAPF and CDS. So if you are preparing for any of these examination, you should definitely go with the Geoscientist paper. You will find many PYQs repeated in these examination from Geoscientist paper. So without wasting any further time, let's move towards the questions. So this paper, this set A is started with numericals, so I don't want you to feel jaded. So we will keep these numericals for the last, and we will do the theoretical portion in today's session. Okay, so we will do the question number 5th. Okay, so before starting this class, let me tell you about our initiative, our free mentorship program. So people, this is last call. After that we are going with going to pay that course for today, and for tomorrow we are still keeping that for free for everyone. That if you are wanted to come and avail this mentorship, then it will be free for you. You can get one-to-one mentorship, call support, okay, as well as the resources and PDFs and free notes you will get with your mentorship. Okay, so without wasting, let's move towards the question number 5th. Okay, question number 5 says, when white light propagating in the air passes through a glass prism, it's split into a band of colors referred to as the white light spectrum. This phenomena is called the dispersion of light among the following colors. The angle of deviation will be highest in. एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि कौन सा ज़्यादा डेविएट होगा, है ना. आपने क्लास 8 से पढ़ा होगा ना, एक विबज्योर, है ना, ये वाला आपने ये निमोनिक पढ़ा होगा, ये एक शॉर्ट फॉर्म पढ़ी होगी ना. यहाँ पे क्या होता है ना, रेड कलर जो कि हम इमरजेंसी साइंस डेंजर साइंस में यूज़ करते हैं ना, रेड कलर. तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो है ना, जो वो मतलब डिस्पर्स कम होता है ना, डेविएट कम होता है, जिससे कि वो दिख सके, है ना. दैट इज वाई वी यूज़ रेड. सो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें से सबसे लीस्ट जो डेविएट होगा वो रेड कलर होगा. उसके बाद में इस तरफ जाओगे तो ज़्यादा डेविएट होते जाएंगे. तो सबसे हाईएस्ट वाला पूछा है, तो यहाँ विब्जर हो गया वॉयलेट, यहाँ पे आई हो गया इंडिका, ये बी हो गया ब्लू, ग्रीन हो गया ये जी, वाई हो गया येलो, ओ हो गया ऑरेंज एंड आर हो गया रेड. सो हियर यू विल फाइंड दैट आर रेड हो गया, रेड तो नहीं होगा, फिर हो गया ऑरेंज भी नहीं होगा, फिर हो गया येलो भी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. 6 is also not a numerical. Basic physics concept, if you know, then you can going with this option, making it correct. Okay, why do you prefer to have the liquid and not a gas to be used in a fluid in hydraulic machine? हाइड्रोलिक मशीन देखी होगी ना, जिसमें लिक्विड यूज़ करते हैं, मोस्टली ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं ना. वहाँ पे लिक्विड क्यों यूज़ करते हैं ना, फ्लूइड क्यों यूज़ करते हैं, वाई नॉट गैस? तो क्या होता है ना कि ये कंपेरेसिबिलिटी होती है. एक तो लिक्विड होता है, एक बाद में ये ना ये गैस होता है ना. तो इनमें क्या होता है ना, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते आप, है ना. तो और है ना, गैस को तो आप कंप्रेस कर सकते हो ना, गैस कंप्रेसिबल है ना, गैस कंप्रेसिबल है. इसका एग्जांपल देखो, वी यूज़ द LPG सिलेंडर्स, है ना. उतने सिलेंडर में मतलब कि गैस आ रही है, मतलब कंप्रेस करके, है ना. CNG इनको भी कंप्रेस करके डालते हैं ना, तो गैस कंप्रेसिबल है. बट लिक्विड हमने देखा है कभी वाटर को कंप्रेस करके देखा है? नहीं होता ना कंप्रेस. सो लिक्विड इज नियरली इनकम्प्रेसिबल एंड ट्रांसफर द प्रेशर अप्लाई टू देम. ओके, ये करेक्ट है ना, ये करेक्ट हो सकता है. लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी. लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल एंड डू नॉट ट्रांसफर द प्रेशर अप्लाई टू देम. नियरली इनकम्प्रेसिबल, यहाँ तक सही है. डू नॉट, अगर जो बना प्रेशर होगा, अगर वो कंप्रेस नहीं होगा लिक्विड, है ना, तो वो प्रेशर कहाँ जाएगा, वो तो दूसरे पे लगाएगा. तो ये तो गलत हो गया, है ना. यहाँ पे डी ऑप्शन कह रहा है कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल. नो, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट theoretical question, that is question number 16. Question number 16 says,
like match the column, match the above. So here you will find the freezing point of the benzene. Okay, second is the room temperature, third is the normal human body temperature. Okay, fourth is the melting point of the lead. Okay, so here you will find कि फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है. फ्रीजिंग यानी कि जो जमता है, जमता किस पे है, जबकि टेम्परेचर कम होता है ना. मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आप देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि वो मतलब मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा ना. ये हो गया 0 डिग्री, नहीं सॉरी नो नो नोट नोट 0 डिग्री, इट्स 23 डिग्री. ये हो गया 33 डिग्री. ये ऑलमोस्ट हो गया, ये हो गया कितना हो गया 4 डिग्री. ओके, और ये कितना हो गया, ये भी मतलब कि 270 से माइनस कर लो, इसमें से उतना हो जाएगा. ओके, सो हियर यू विल फाइंड कि मेल्टिंग पॉइंट है तो वो हाई पॉइंट ही होगा ना, तो ये इतना हो गया. कॉमन सेंस से जाओगे तब हो जाएगा. बेंजीन जो मतलब कि फ्रीज हो रहा है तो फ्रीज होगा तो कम टेम्परेचर पे होगा, है ना. सो हियर यू विल फाइंड, ओके, हियर यू फाइंड कि ऑप्शन एक सी से मैच हो रहा है, तो हियर यू विल फाइंड ये हो रहा है, ये तो दोनों ही काट दो. ओके, सो देन डी का 2 हो गया. ओके, डी का 2 हो गया, हमने कर लिया. अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है. ओके, सो हियर यू विल फाइंड कि जो रूम टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री के आसपास, है ना. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है ना, तो ये 37 ही है, सॉरी, है ना. सो ऑप्शन सी विल बी द moving towards the D. Okay, so here option D will be the correct option. Okay, and the room temperature will be 27 degrees. Okay, let's move toward the next theoretical question. Okay, 18 question is very like you can say very easy and very confusing. Like options मेरे हिसाब से तो कोई सही नहीं है. None of the option is right according to the question. एक दे रखा है, एक ग्लास बार है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.5, इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ ग्लास. द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए लाइट रे एट विच द लाइट वुड बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्लास बार विदाउट रिफ्रैक्शन. सो क्या दे रखा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, है ना. सेम जो इसमें वाटर है ना, तो मतलब कि जो लिक्विड में दोबारा का है, इमर्स्ड इन ए लिक्विड. ओके, index as that of glass. Okay, the angle of incidence of the ray which, okay, so here you will find कि इसमें डूबा हुआ है ना. तो कौन सा जो, जैसे इनका दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है तो ये अंदर दिखेगा नहीं हमें, है ना, ये ट्रांसपेरेंट ही होगा. ओके, सो जो आएगी रेज वो चाहे कितने भी एंगल पे डालोगे तो वो सीधी की सीधी नॉर्मल पास होगी, डिफ्रेक्ट नहीं होगी. सो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शंस मतलब नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. So and we will try that with the numericals. We will again go to with this question, but according to now, as of now, I can say that none of the option is correct. Okay, let's move toward the question 19. Question number 19. Question number 19 say the sound wave consists of, sound wave में क्या होता है, compression होता है, rarefication होता है ना. Okay, rarefaction होता है ना. So compression and rarefaction one after the other. Option B will be the correct. क्या दे रखा है पहला, कंप्रेशन है, कंप्रेशन पल्स एंड रेयरफैक्शन पल्स सेपरेट बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1. नहीं, डिस्टेंस नहीं होगा एकदम, मतलब कि वन आफ्टर से अदर ही होगा. ओके, थर्ड सेज ए नंबर ऑफ रेयरफैक्शन पल्सेस वन आफ्टर अदर. नहीं, ये भी नहीं होगा. सिर्फ कंप्रेशन, नहीं, ये भी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. कौन सा, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू. You have to read the question carefully. Okay, the centripetal acceleration is always directed toward the center. Okay, option B says the motion of an object is called uniform circular motion if the object follows a circular path at constant speed. Okay, the velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particles of that point. Okay, option D says the net acceleration in the circular motion is always along the radius of the circle towards the center. Okay, so here you will find कि the centripetal acceleration is always directed towards the center. Yes, ये सही है, करेक्ट है, हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ही होता है. ओके, सेकंड सेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ द ऑब्जेक्ट फॉलोड ए सर्कुलर पाथ. ओके, ये भी करेक्ट है. वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज पॉइंटेड ऑलवेज टुवर्ड्स द
टेंजेंट एट द पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ दैट पॉइंट, ये भी सही है। नेट एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, नहीं यहाँ पे ऑलवेज नहीं होगा, ये सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइम पे ही होगा। सो ऑप्शन डी विल बी द, मतलब कि यहाँ पे अगर जिसका आंसर देखे तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं डायरेक्ट, इसको बाद में करेंगे, वी विल डू लेटर। न्यूमेरिकल्स वी विल डू एट द लास्ट। ओके, which among the following is an example or olfactory indicators? olfactory indicators जो होते हैं, जो जिनका मतलब कि अगर है ना एसिड एंड बेस के कारण उसका मतलब कि टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब कि टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट और जो उनका जो होता है स्मेल चली जाती है, स्मेल। तो ये हो गया अनियन हो गया, इसके साथ ही अनियन के साथ और लिख लो आप, जैसे कि एक तो हो गया वनीला हो गया, है ना, वनीला। एक हो गया क्लोव, जो लौंग होते हैं ना, वो मतलब कि ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल को चेंज हो जाती है इनकी, मतलब कि एसिड और बेस के कारण। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है ना। सो क्वेश्चन नंबर 23 सेज नेचुरली अकरिंग एसिड मेन सोर्स। सो यहाँ पे सबसे जाना पहचान, मतलब ये तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हियर यू विल फाइंड मेथेनोइक एसिड आंट स्ट्रिंग में होता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंज में होता है। सो हियर यू विल गेट ए का 3 यानी कि ये कट गए। ओके, and B का 1, तो B का 1, so here option will be the correct. Tartaric is the turmeric and oxalic acid का हो गया टोमेटो। ओके, हाँ यही है ना, oxalic acid का हो गया टोमेटो। ओके, let's move toward the question number 24. okay, question number 24 says which one among the following constituents of the cement is responsible for initial setting? कैल्शियम सल्फेट, है ना, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ओके, सो हियर यू विल फाइंड की दैट ऑप्शन ए सेज द कैल्शियम सल्फेट, दैट इज जिप्सम। ओके, सो दिस सेज डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट इज लाइक फॉर अर्ली स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सीमेंट। ओके, सो द थर्ड इज ये है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये होगा ट्राई कैल्शियम C3 एल्यूमिनेट। सो इसमें ये होता है ना कि अर्ली रिएक्ट कर लेता है, जिसके कारण ये अर्ली सेटिंग्स में, इनिशियल सेटिंग्स में होता है। ओके, ये होगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेरेट, ये होगा टेट्रा कैल्शियम, ओके, C3 कैल्शियम, ओके, एल्यूमिना फेराट। ओके, सो यहाँ पे देखोगे आप तो ये वाला हो जाएगा, ये है ना कलर्स वगैरह के लिए होता है ना। तो हियर यू विल फाइंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। सो और सीमेंट्स में बेसिकली कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जस्ट एक बार बता देता हूँ आपको। एक तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना होता है ना आपका वो, देन आफ्टर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओके, रिमेंबर Al3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, देन Fe2 फेरस ऑक्साइड, नहीं Fe फेरस, ओके। सो ये मेजर होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड नोट कर लो, पेपर में नोट कर लो, so that you at the exam time you don't have to scroll everything. Okay, you can just revise your paper only. Okay, so question number 25 says करेक्ट मैच करना है। ओके, सो हियर सबसे इजी कौन सा है, ग्रेफाइड ब्लैक से ही होता है। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन एलिमिनेट 2 क्वेश्चंस। नॉर्मल अगर आप में कॉमन सेंस है, ग्रेफाइड वी कैन सी इन द इट्स यूज एज ए ना ऑन द लुब्रिकेंट इन सम इंडस्ट्रीज। ओके, और it's a powder form of liquid lubricant. Okay, so here you eliminated two answers and you will find ki A PBO is also yellow, so you will find option इनमें से कौन सा होगा। so here you will get to know this Cr2 है ना, क्रोमियम ऑक्साइड है वो ग्रीन कलर का होता है पिगमेंट, और ये लेड ऑक्साइड है ये रेड कलर का होता है। तो हियर ऑप्शन कौन सा होगा, B will be the correct option. Okay, so you have to remember all these things. Okay, पढ़ना है आपको जाके। Okay, what is the maximum density of water has the maximum density at which one of the following temperature? कौन से टेम्परेचर पे होता है, तो बेसिकली ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उस पे होता है। एंड डेंसिटी ऑफ आइस की डेंसिटी है ना, ऐसा नहीं लिखते, आइस की डेंसिटी हमेशा कम होती है लिक्विड की डेंसिटी से, है ना। सो ये आपको याद रखना है। ओके,
और ये तो 8 डिग्री मतलब वो ना 4 डिग्री सेल्सियस है, ये हो गया कितना 277 डिग्री है ना, 277 केल्विन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट was considered by the Mendeleev in order to form his periodic table? Mendeleev के द्वारा कौन सा एलिमेंट था उसको कंसिडर किया था? सो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक ना पीरियोडिक टेबल्स वर tried by different scientists. So Mendeleev is basically tried with the atomic mass. Then after Moseley come, that is also known as modern periodic table, that is about the atomic number. So Mendeleev's की थी वो atomic mass के ऊपर थी. Okay, so let's move toward the question number 28. 28 says which one of the following statement for the reaction between metal and nitric acid is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? नाइट्रिक एसिड रिएक्ट एज एन ऑक्सीडाइज एजेंट। हाँ सही है, इसमें क्या है मतलब जनरल स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन लिबरेटेड इन रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। हाँ डेफिनेटली। गैसियस नाइट्रोजन इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एज एन फाइनल ग्रुप। ओके, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन। ओके इज ओके, ये भी सही हो गया। देन आफ्टर गैसियस नाइट्रोजन इज नो, इसमें गैसियस नाइट्रोजन नहीं होगा, कभी नाइट्रोजन हो जाएगा, कभी NO हो जाएगा, कभी NO2 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी विल बी द, यानी कि अगर इनमें देखा जाए तो इनकरेक्ट, मतलब ये सारे करेक्ट होंगे, ऑप्शन सी विल बी द इनकरेक्ट। ये सिर्फ ऑलवेज नहीं, मतलब ऑलवेज सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं होता, कभी नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कभी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ओके, सो ऐसे होता है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 सेज कौन सा है, मैच करना है, कंपाउंड है, टाइप ऑफ ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होते हैं। सो H2O इज बेसिकली न्यूट्रल है ना। सो H2O विल बी न्यूट्रल, मतलब पानी है, पानी न्यूट्रल होगा, एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है। सो ऑप्शन, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। यू हैव टू फाइंड बिटवीन A एंड C। ओके, एंड D का 2 यानी CO2 एसिडिक हो गया। ओके, सो B आइदर 1 होगा और 4 होगा। सो B इज N2O is basically I think basic in nature. Al2O3 is amphiphoritic यानी कि जो मतलब कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके कर ले, है ना, वो होता है। ओके, यू विल फाइंड हियर ऑप्शन बी का 4 यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next says question number 30 says which one of the following reactions correctly represent the respiration reaction? कौन सा है जो respiration reaction को मतलब करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे बेसिकली ग्लूकोज प्लस वाटर मिलके ये CO2 प्लस H2O बनाते हैं। तो ग्लूकोज इज बेसिकली C6H12O6 प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 plus 6H2. Okay, so option B will be the correct option. Okay, let's move toward the question number 31. 31 says the water at 0 degree Celsius have more energy than that of ice at 0 degree. हाँ मतलब कि सही है, लेटेंट हीट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, वाटर में लेटेंट हीट ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा होती है। ओके, सो हियर ऑप्शन सी विल बी द सेम, विल हैव द मोर एनर्जी। ओके, डेफिनेटली, क्योंकि वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है तो वहाँ पे लेटेंट हीट लगी है तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी विल द टेम्परेचर ऑफ द आइस रिमेन कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज इट मेल्टिंग इज नॉट कंप्लीट। ओके, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस वेरीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। हाँ डेफिनेटली वेरीज करता है, इसमें क्या दिक्कत है, वेरी करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली करेगा। कांस्टेंट तो नहीं होगा ना, आइस तो वो ही है ना, जितना होगी उतनी वो एकदम हार्ड बनती जाएगी। ओके, सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 सेज सेपरेशन ऑफ आइसोटोप यूरेनियम रिक्वायर फिजिकल मेथड रादर देन ए केमिकल मेथड। इट इज मेनली बिकॉज क्या होता है, इट इज टू डेंजरस टू मिक्स अदर chemicals with uranium. The isotopes are chemically of the same element. Okay, the isotopes differ in the number of neutrons. The natural uranium contains only 0.7% uranium 235. Okay, so here you will find कि isotopes होते हैं जो यूरेनियम के और किसी के भी, वो केमिकली कंपाउंड सेम होता है तो उसको मतलब कि मैनुअली करना पड़ता है। वी कांट डू इट विद ए केमिकल, मतलब केमिकली रिएक्शन से नहीं कर सकते, है ना। सो वी हैव टू डू इट मैकेनिकली और मैनुअली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय इन ह्यूमन स्टमक। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये होता है जब
मिल्क को मैग्नीशिया जब काम में आता है, जब एसिडिटी हो जाती है ना तब काम में लेते हैं। सिट्रिक एसिड जो हमने बताया था इसमें ऑरेंज में होता है, सिट्रिक एसिड हो गया। ओके, सो ऑप्शन 34 सेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इवेपोरेशन। डिक्रीज कब होता है? जब पहला क्या कहता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि आपने देखा होगा ना, जब हम कपड़े सूखने के डालते हैं तो उनको फैला देते हैं, क्यों? क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही इवेपोरेशन फास्ट होगा। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द इनकरेक्ट। टेम्परेचर, सो वी विल फाइंड कि यार ना गर्मियों में वी लूज एनर्जी फास्ट, बिकॉज जो हमारे में जो मॉइस्चर होता है हमारी बॉडी में वो इवेपोरेट होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो है ना इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जिसके लिए वो एक्सेसिव जो वाटर होता है ना, उसको जो हीट के तौर पे बाहर निकालता है, एंड देन आफ्टर दैट गोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, सो ऑप्शन बी विल ऑल्सो इनकरेक्ट, टेम्परेचर नहीं होगा। एंड फोर्थ सेज विंड स्पीड। विंड स्पीड जितने ज्यादा होगी तो वो वाटर को उतने से अपने साथ ज्यादा लेके जाएगी। सो हियर वी विल फाइंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो ऑलरेडी बना मतलब कि एटमोस्फेयर में वाटर को ज्यादा ही है, तो इन दिस कंडीशन द liquid evaporation of liquid will be decreased. Okay, so 35th question says consider the following element: bromine, phosphorus, mercury, radon, है ना? How many of the above elements are found in the liquid form at 25 degree Celsius? यानी रूम टेम्परेचर पे कौन होता है? So you have to remember mercury and this is bromine. Okay, so option बी विल ओनली 2 विल बी द करेक्ट। यहाँ फॉस्फोरस भी नहीं होगा, रेडॉन भी नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 सेज 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस इज और आर एग्जांपल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का कौन सा एग्जांपल है? फर्स्ट इज माइकोरिजाज, ये होता है फंगई एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स में, है ना। लाइकेंस होता है फंगई एंड फोटो सिंथेटिक एल्गीज में। थर्ड इज पोलिनेशन, मस्टर्ड, फ्लावर्स एंड हनी बीज। सो विदाउट थिंकिंग इट मच, बिकॉज अगर आप सोचने बैठोगे तो आई थिंक यू विल एंड अप मेकिंग इट रॉन्ग। आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है कि in this type of situation where you will find 3 statements and there is an option given about all 3, then you have to go with that, because you may find that 5 questions related to this concept and you may find कि 2 questions are wrong. You will find 2 questions wrong with this concept, but there is a net positive 3 questions, है ना। so यहाँ पे पॉजिटिव तो चल रहा है ना आप, तो उस हिसाब से चलो, क्योंकि वी डोंट नो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस कौन सा नॉलेज के बेसिस पे कर सकते हैं। नो, इट्स वेरी टफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। कौन सा है जो ऑर्गेनिज्म का एडेप्टिव करेक्ट है ना, ऑर्गेनिज्म का एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक करेक्ट है। मेमल्स इन द कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। इन पोलर आइज सील्स टेंड टू हैव थिनर layers of fat below their skin. Okay, plants in the desert tends to have broader elaborate leaves. In high altitude the production of RBC in the body decrease. नहीं, ये वाला गलत है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो बॉडी ज्यादा से ज्यादा RBC प्रोड्यूस करती है। थर्ड सेज प्लांट इन डेजर्ट एरिया टेंड्स टू हैव ब्रॉडर लीव एंड इलेबोरेट। नहीं, उनमें छोटी लीव्स होती है, स्मॉलर लीव्स होती है, ताकि वेपोरेशन कम हो एंड द प्लांट कैन सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम। ऑप्शन बी सेज इन पोलर रीजन सील्स टेंड टू हैव थिनर नहीं होता, थिकर होता है। थिक यानी मोटी चमड़ी होगी, अगर मोटी होगी तो उनको ठंड कम लगेगी, है ना। सो फर्स होते हैं जैसे, वैसे ही है। मेमल्स इन द कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्टर ईयर्स। यस, ये एलियन कॉन्सेप्ट होता है ना, एलियन रूल होता है, उसके हिसाब से होता है, यानी कि शॉर्टर लिम्स होंगे ना तो लूज कम होगी एनर्जी, है ना। सो दैट इज द correct option. Question number 38 says xerophytic plants adapt to the hot arid regions by developing thick cuticles on their leaf surface, opening stomata only during daytime, having photosynthetic roots, or growing leaves only during the winter. So this concept was asked multiple times, I think in double digits in UPSC examination only. You will find this question, same question in different way asked in NDA, CDS, CAPF, Geoscientist and UPSC CLC, मतलब Civil Services examination. So option A will be the correct option. यहाँ पे आपको याद रखना है कि small leaves होती है ताकि वेपोरेशन कम हो, है ना। वो थिक कर्टल्स होते हैं, है ना, मोम बन जाता है जैसे, है ना, ताकि वेपोरेशन को कम किया जा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 सेज
which among the following stages of cell cycle is correctly matched in the characteristic. So here you will find ki option A says interphase. Interphase is growth of cell and replication of DNA, and the second says interphase cell begins to separate its DNA content. Mitotic phase, ये growth of cell and DNA replication. Mitotic phase, both the daughter cells are provided with the double the amount of DNA. So here you will find that option A will be the correct option, but here is your homework, है ना. You have to comment, you have to read about the interphase and mitophase, है ना, and comment in the comment section and help everyone to get to know about the interphase and mitotic. It's your homework. Please do your work religiously, है ना, so that it will help you in your examination. 14 question number 40 says which one of the following set of disease is an example of polygenic disease. Polygenic यानी कि जो जेनेटिक भी होती है प्लस इन्वायरमेंट से भी हो जाता है. सो हियर विल सिकल सेल एनीमिया, नहीं सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये हीमोग्लोबिन की मतलब की जब डेफिशिएंसी होती है तब होता है. सिकल सेलिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया नहीं, पहला तो नहीं होगा. सेकंड हाइपरटेंशन, कोरोलरी हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाँ ये हो सकता है, इसको देखते हैं ना. ये होता है ड्यूकेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी, कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज. डी सेज एकोन्ड्रोप्लासिया, साइटिक फिब्रोसिस, टाई Shach's disease. So here you will find the most appropriate will be hypertension, corollary heart disease and diabetes. Okay, so option B will be the correct option. 41st question says which one of the following is not associated with the zoom cultivation in the northeast state. तो zoom cultivation you know, ये इसमें डिफोरेस्टेशन होता है, इसमें ये स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है. इसमें क्या होता है ना, ट्राइबल्स होते हैं, वो एक वन फॉरेस्ट के एरिया को पकड़ते हैं, उसकी जो जितनी भी वेजिटेशंस होती है उसको जला देते हैं, फिर जो जलती है उससे राख बनती है, उससे वो जमीन फर्टाइल हो जाती है, उसको वो यूज़ करते हैं काफ़ी टाइम तक. बाद में जब वो इसकी फर्टिलिटी डाउन होने लगती है तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पकड़ते हैं, उस पर सेम प्रोसेस करते हैं. तो ये स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया. इसी ऑप्शन बी सेज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटाट ऑफ, नहीं उनको तो खत्म ही कर रहे हैं नेचुरल हैबिटाट को तो, है ना. फ्लोरा एंड फ्योना के तो पीछे ही पड़ रखे हैं वो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 42 says which one of the following protocols was signed in 1987 to reduce the production and use of the ozone depletion substances. So that was, I think, Kyoto Protocol is related, है ना. 1987 में हुआ था ये क्योटो प्रोटोकॉल. ये कार्टिजनस आई देख 2010 में, नॉट श्योर, है ना. यू हैव टू रीड अबाउट दिस, यू हैव टू रीड, क्योंकि ये होता है ना कि ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो ये आ सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, मतलब कि 4 दे रखे, चारों में से कोई सा एग्जाम में टपक सकता है ना, ध्यान रखना. ओके, सो ऑप्शन 43rd क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा करेक्ट है. यूवीबी, है ना, रेडिएशन डैमेज डीएनए बट डू नॉट कॉज म्यूटेशन. नहीं, म्यूटेशन भी करता है डीएनए, कॉज भी करता है, डैमेज भी देता है, तो म्यूटेशन भी करता है. क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन बी सेज कॉर्निया इज इन ह्यूमन आईज एब्जॉर्ब यूवी बी रेडिएशन. हाँ करता तो है. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 सेज यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ग्रेटर देन यूवी बी आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस. नहीं, अर्थ तो बेसिकली शॉर्ट वेव्स को एब्जॉर्ब करती है ना. ये नहीं होगा. ऑप्शन सी विल ऑल्सो इनकरेक्ट. यूवीबी रेडिएशन में बी यूजफुल टू ट्रीट स्नो ब्लाइंडनेस. नहीं, स्नो ब्लाइंडनेस का तो कारण बनता है ये, नहीं ये ट्रीट नहीं करता, ये तो कोज हो गया. सो हियर यू विल फाइंड कॉर्निया इन ह्यूमन आई एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन, यूवीबी रेडिएशन. इट कैन मेक यू ब्लाइंड, सो दैट इज व्हाई इट वाज एडवाइज्ड टू वियर द colored sunglasses. Okay, question number 44 says which one of the following viruses is considered to be responsible for COVID-19. COVID-19 के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है. सो ये तो आपने मतलब लॉकडाउन के टाइम पे काफी सुना होगा, SARS-CoV-2. ओके, सो 45th क्वेश्चन सेज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पेलिंडियाटिक रिपीट आर एसोसिएटेड विथ, ये जेनेटिक एडिटिंग मेथड है. क्रिस्पर केस 9 वाला आपने सुना होगा, क्रिस्पर CRISPR, क्रिस्पर केस, है ना, ये आपने सुना होगा, काफी न्यूज में होता है, साइंस और टेक का पार्ट होता है ना. सो यू मे हर्ड अबाउट दिस. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, है ना.
ये क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, है ना। 46th question says it is an extremely cold wind laden with the dry snow. This wind has sub-freezing temperature and carries abundant supply of ice crystals and snow. Extremely cold temperature है, एक्सट्रीमली कोल्ड विंड लेडन ड्राई स्नो, यानी कि जो एक्सट्रीमली कोल्ड है तो ठंडी मतलब कि जो ये होगी कोल्ड करंट होगी। तो यहाँ पे आप देखो तो हार्मटन एंड चिनूक तो वार्म करंट है। सो ऑप्शन यू हैव गोट ओनली 2 ऑप्शन, सो इन दिस यू कैन से दैट डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ये हो गया ट्रामोंटे मोन्टेन, ये बेसिकली मेडिटेरियन सी के आसपास वाला इलाका होता है ना, उसमें होती है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 सेज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पासेस थ्रू, कौन सी कंट्री से पास नहीं करता है? चिली तो आपने सुना होगा ना, मतलब कि लॉन्गेस्ट कंट्री है ना। पराग्वे थोड़ा सा इस तरफ आ गया, ब्राजील इस तरफ आ गया, उरुग्वे थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न से थोड़ा ऊपर है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज है, आपको मैपिंग यू हैव टू डू मैपिंग वेरी रिलीजियसली। मैपिंग से क्वेश्चंस का मतलब कि बढ़ रहा है, पार्ट्स बढ़ रहा है, सो आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना मैपिंग को करना है। सो क्वेश्चन नंबर 48 says llamas are typically reared लामाज बेसिकली मतलब कि एक है ना डोमेस्टिकेटिंग एनिमल होता है, ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास होता है, मतलब कि 6 फीट के हाइट पहुंच पाता है। कैरेक्टरिस्टिक इसकी है 600 पाउंड्स के आसपास इसका वेट होता है। इसका मतलब कि मीट में, वूल में इसको काम में लिया जाता है। तो ये बेसिकली एंडीज माउंटेन रीजन में पाया जाता है ना। यू हैव टू रीड अबाउट लामास केयरफुली, ये एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 says the cultivation of which one of the following crops was introduced in the बाबा बुधान हिल्स। बाबा बुधान हिल्स में किसका करना मतलब कि कौन सी क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया था? सो स्टोरी ये है कि बाबा बुधान हिल्स है ना कर्नाटका में, वो बाबा बुधान के नाम से ही मतलब कि बाबा बुधान जो एक पर्सनैलिटी थे, सूफी सेंट थे, उन्हीं के नाम पे ये बनी है। तो वो जब यमन गए थे तो वो 7 जो है ना अरेब मतलब कॉफी के बीन्स होते हैं ना, वो लेके आए थे, है ना, और उनको यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे कॉफी हो गया नेटिव, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 50 सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लिस्ट इन परसेंटेज इन द वॉल्यूम ऑफ द एटमोस्फियर। सो यू विल फाइंड कि सबसे ज्यादा कौन होता है? नाइट्रोजन, देन आफ्टर ऑक्सीजन, उसके बाद में धीरे धीरे कम होते होते देन आर्गन, बाद में नियोन, बाद में हीलियम, बाद में हाइड्रोजन। सो लास्ट में हाइड्रोजन होता है 0.00005%, ये होता है 0.0005%, ऐसे होता है ना। यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 सेज in which among the following atmospheric layer the temperature increase with the height। so ऐसा जिगजैग वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला आ गया ट्रोपोस्फीयर, बाद में होगा स्ट्रेटोस्फीयर, बाद में मीजोस्फीयर, बाद में थर्मोस्फीयर, बाद में एक्सोस्फीयर। ये हो गए लेयर्स हो गई है ना। सबसे पहले आ गया ट्रोपिकल लेयर, ट्रोपोस्फियरिक लेयर, बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयरिक, बाद में थर्मोस्फियरिक, बाद में हो गया एक्सोस्फियरिक। सो यहाँ पे होता है ना कि जब आपने देखा होगा जब नॉर्मल टेम्परेचर में जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। सो याद रखो, फर्स्ट यानी कि मतलब कि पहले जाओगे तो पहले टेम्परेचर ऊपर जाओगे कम होगा, फिर जब स्ट्रेटोस्फीयर में जाओगे तो टेम्परेचर इसमें तो कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, इसमें ऊपर बढ़ेगा, फिर मीजोस्फीयर में जाओगे तो वापस कम होगा, फिर थर्मोस्फीयर में वापस इंक्रीज होगा, फिर आइनोस्फीयर मतलब एक्सोस्फीयर में वापस डिक्रीज होगा। ओके, सो क्या पूछा है? इंक्रीज किस में होगा? थर्मोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में होगा। सो यू विल फाइंड दैट थर्मोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, ये याद रखना कि एटमोस्फीयर मतलब कि जो ट्रोपोस्फीयर में कम होता है, बाद में स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ता है, बाद में मीजोस्फीयर में वापस कम होता है, बाद में थर्मोस्फीयर में वापस बढ़ता है, बाद में एक्सोस्फीयर में वापस कम होता है, ऐसे ही है ना। सो क्वेश्चन नंबर 52 says which one of the following tectonic plate is not located in the पैसिफिक ओशियन। कौन सा है जो पैसिफिक ओशियंस के आसपास नहीं है? तो ये बेसिकली आई थिंक स्कोटिया है, स्कोटिया प्लेट है ना, जो पैसिफिक ओशियन में नहीं है, ये शायद सदर्न अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ओके, सो 53rd क्वेश्चन सेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट 147 million kilometers between sun and earth is found during the earth's orbit around the sun at the position of, है ना, कौन सी पोजीशन है? डिस्टेंस ऑफ अबाउट 147 million kilometers between the sun and earth is found during the earth's orbit around the sun at the position of, यानी कि
बेसिकली जो सन और अर्थ के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो 14,95,98,000 किलोमीटर के आसपास होती है ना। सो ये कितनी है, ये है 70 मिलियन के आसपास है ना। सो यहाँ पे आप देखोगे कि मतलब कि कम है, जो एवरेज से कम है ना ये, यानी कि जब है ना, मतलब कि जब अर्थ सन के पास में होता है, अर्थ सन के पास के में कब होता है, 3 जून को होता है। 3 जून को मतलब कि अर्थ सबसे क्लोजेस्ट होता है सन के, है ना। उस टाइम क्या होता है, एपीहीलियन होता है, पेरीहीलियन होता है। जब पास में होता है तो पेरीहीलियन, जब दूर जाता है जो 3 जून को जाता है आई थिंक, है ना, तो इस टाइम पे होता है एपीहीलियन। ओके, जहाँ पे पेरीहीलियन में जब है ना अर्थ और सन की डिस्टेंस मिनिमम होती है, वहीं एपीहीलियन में सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 54 says which one of the following river is tributary of the river हुगली। हुगली की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सो हियर यू विल फाइंड कि हुगली की ट्रिब्यूटरी दामोदर है। दामोदर जिसको हम बिहार का सोरो ऑफ द बंगाल भी बोलते हैं, बिहार का नहीं सॉरी बंगाल का। सो बिहार बंगाल का शोक भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में है ना सोरो ऑफ द बंगाल भी बोलते हैं। वही पद्मा, ये मतलब कि जो बांग्लादेश में जाने के बाद वाला सारे के सारे नाम है। दामोदर जो वेस्ट बंगाल के आसपास हुगली में मिल जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 says, okay, consider the following characteristics of a type of soil as given by the Natural Resource Conservation Service. Okay, it developed in poorly drained area. It is largely composed of slow decomposing plant material. It is common in tundra area. So option, on the basis of the above characteristics identify the type of soil. कौन सा टाइप ऑफ सोइल को आइडेंटिफाई करना है? सो लेट मी टेल यू, द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ इट्स योर होमवर्क दैट यू हैव टू कमेंट डाउन ऑल द 3 A, C and D with their explanation. Okay, please do your work. Okay, question number 56 says exfoliation in rocks can occur due to the force induced, है ना, induced by carbonation, oxidation, temperature change. Select the correct answer using the code given. So here our trick failed. सब टाइम ना क्लियर ही नहीं होगा, कभी कभी फेल भी होगा। मैं बता भी दूंगा कि कहाँ पे फेल होगा, है ना। सो ये एक्सफोइलेशन होता है, जिसमें क्या होता है ना कि जो रॉक के ऊपर की लेयर होती है ना, वो ऐसे पपड़ी की तरह उतरने लग जाती है ना। नॉर्मल जो रेगुलर भाषा में बोलते हैं पपड़ियाँ उतरने लग जाती है इसकी। वो कब स्टार्ट होता है? नो कार्बोनेशन, नो, ये केमिकल से रिलेटेड है, इनमें नहीं होता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है ना, जब चेंज होता है तो वो कंप्रेस और है ना, मतलब कि एकदम कंप्रेशन होता है उसमें रॉक्स में, जिसके कारण होता है मतलब कि ये रॉक्स मतलब ऐसे बना टूटने लगती है। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Question number 56 says, which of the following is related to the term Nepanalysis? नेप इज बेसिकली ये क्लाउड्स के बारे में होता है। क्लाउड्स को नेप कहते हैं, मतलब कि आप है ना उसमें ग्रीक वगैरह में देखोगे, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द करेक्ट कि कहाँ पे बोलते हैं, बट नेप इज रिलेटेड टू समथिंग, इज रिलेटेड टू क्लाउड. सो यहाँ पे क्लाउड एनालिसिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, 58th क्वेश्चन सेज, among the following local winds which one is known as doctor wind? So ये होता है हर्मटन, है ना. तो आपको जैसे कि वी हैव सीन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द लोकल विंड्स, है ना. सो यू हैव टू डू दिस लोकल विंड्स फॉर योर एग्जामिनेशन. डेफिनेटली यू शुड डू दिस, है ना. And you will find in your CDS and CAPF examination direct questions from this concept of like local wind as well as the ocean currents. Okay, so please don't leave this question. Okay, this topic. 59th question says, which one of the following cities is not connected through the Trans-Canadian Railway line? Trans-Canadian Railway line, that is I think second largest, longest I think railway line है, not sure, है ना. जस्ट बता रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत याद आया तो मैं बता रहा हूँ. फर्स्ट इज ट्रांस साइबेरियन हो गया, है ना, लॉन्गेस्ट. हियर यू विल फाइंड यस वनकोवेर, यस है. ओटावा भी है, जो कि कनाडा की कैपिटल है, वो ओटावा है. मॉन्ट्रियल भी है. येलो नाइफ इसमें नहीं है, येलो नाइफ थोड़ा सा साइड में है ना. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, यहाँ पे करेक्ट होगा, मैंने इसको काट दिया है ना. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 60 से, द गोविंद वल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंट JFIN has its headquarters at ये अल्मोड़ा, मतलब अल्मोड़ा यूके में, उत्तराखंड में. ओके,
ये factual questions है, you have to remember. So question number 61 says the Deccan riots of 1875. Okay, so for today, for this class, I think because we have done enough questions, we have done towards the 60 questions. So let's end up this class today here, and we will do the next part from tomorrow onward. Okay, so have a good day. I hope you enjoy the lecture. Bye.